Good evening students, today we are going to learn about the shapes of atomic orbitals. In the last lecture we have studied the various type of orbitals like 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Now we are going to learn about the shapes. Now the shapes of these orbitals, it depends upon the two factors. One is the wave function and second is the probability density. Wave function is psi and the probability density is the psi square. Now both these factors, this depends upon the radial distance from the nucleus. Now these two functions psi and psi square, it will depends upon the radial distance. So I can write that psi, this psi and the psi square, these are both are function of radial distance from the nucleus. So I have to plot a graph between the psi and the r and the psi square and the r. Now this relation, it will give me the probability density and in which in further turn the shape of the atomic orbital. Suppose if I go with the 1s orbital. So in the case of 1s orbital, if I place the psi in the y direction and r in the x direction, it will have a exponential function, that is a decreasing function, decreasing exponential function like this. Now at r is equal to 0, the psi has the maximum value, but as the r increases, the value of psi decreases, but it never approaches to 0. Similarly, if I take the example of 2s, now psi is placed in the y-axis and r is placed on the x-axis. Initially it has the maximum value, but as the r approaches, it values approaches to 0 and then the maximum negative value. After that it goes to the positive value but becomes the constant. So here it is, the psi is the positive and here psi wave function is the negative. Now this is the relation between the psi and r. If I plot the graph between the psi square and the r, then there will be some slightly change. Now what is that change? Psi square as a function of r. Now in the case of 1s orbital, here psi square is placed here and r is placed here. Now it will have a like decreasing slope. This is exponential function with decrease. It is a decreasing function. Now in the case of 2s, psi square is placed here and r is placed here. Now here it will touch here, then it will write increase and then it will get decrease. Now this is a point, it is called the radial node. This will be called the radial node. Here the probability of finding the electron will be 0. Here psi square is 0. Probability of finding electron 0. It reaches to a peak value, then it decreases, but it never approaches to 0. So this is the 2s orbital. Similarly, if I draw the 2p, now here probability of finding electron is 0, but it increases to some reaches a maximum value, then it decreases but never approaches to 0. Hello. Yes, sir. Yes.
मैं डिस्कस कर रहा था 2p ऑर्बिटल का। 2p ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस विल बी जीरो, तो आपकी मैक्सिमम, इट विल हैव द मैक्सिमम साई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आफ्टर दैट क्या होगा, इट विल इट विल हैव द जीरो वैल्यू, नॉट मैक्सिमम, इट विल हैव ए जीरो वैल्यू। फिर ये आपकी क्या होगी, राइज करना स्टार्ट कर देगी। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक राइज करेगी, उसके बाद में डिक्रीज करेगी, देन इट विल गेट पैरेलल टू दिस, कभी भी मैच नहीं करेगी इसको। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पे आप, जैसे मैं रीड, फॉर 2s ऑर्बिटल एट ए पॉइंट द वेव फंक्शन बिकम जीरो, द पॉइंट एट विच द रेडियल फंक्शन बिकम जीरो इज कॉल्ड द रेडियल नोड, सरफेस और सिंपली नोड। एट द नोड द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जहाँ पे आपका जो साई है, ठीक है, वेव फंक्शन आपका जीरो हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड। ओके, उसके बाद क्या होता है, वेव फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव है यहाँ पर वेव फंक्शन, नीचे आपका क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द नेगेटिव। एट द नोड द वैल्यू ऑफ वेव चेंजेस फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टू द नेगेटिव। नोड बेसिकली क्या है, द चेंज इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो कॉल्ड द नोड। फिर आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स। अभी तक हमने किया था वेव फंक्शन, द स्केयर ऑफ वेव फंक्शन साइज स्केयर एट ए पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। दिस वेरिएशन ऑफ साइज स्केयर एज ए फंक्शन ऑफ आर obtained by plotting साइज स्केयर अगेंस्ट आर। नाउ अभी तक हमने किया था साई को आर के साथ में रिलेट किया था, अब मैं स्केयर ऑफ फंक्शन, द स्केयर ऑफ वेव फंक्शन साइज स्केयर की बात कर रहा हूँ। ये साइज स्केयर को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हमने आर के साथ में प्लॉट करना है, और देखते हैं क्या हमको जो है ग्राफ मिलता है। जैसे कि 2s ऑर्बिटल का प्लॉट किया है यहाँ पर। अब एक पहले शेप ऑफ एस ऑर्बिटल बताता हूँ, उसके साथ में रिलेट करता हूँ। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल, s orbitals are non-directional and spherically symmetrical. It means that probability of finding the electron is same in all direction at a particular distance from the nucleus. The density of electron is maximum at the nucleus and decreases with increase in distance. 2s orbital is also non-directional and spherically symmetrical. The effective volume of the size of 2s is larger than the 1 1s orbitals. An important feature of 2s orbital is that there is a node. Similarly, 3s orbital has two nodes. इसका मतलब क्या, अभी समझाता हूँ जस्ट। सर साई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेलो, हाँ बोलना, हेलो हेलो। सर साई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, इनवर्सली है। बेसिकली दिस इनवर्स इज रिलेटेड विद एक्सपोनेंट। ये सिंपली नहीं है, एक्सपोनेंटली है। इनवर्सली कह सकते हो, बिल्कुल ये कह सकते हो। हाँ, इसको देखते हैं एक।
देखो साइज स्क्वायर को आर के रिलेशन में प्लॉट करना है। ओके, बेसिकली साइज स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, ये हमने प्लॉट करना है। नाउ अब ये किस किस ऑर्बिटल के करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले 1s। नाउ 1s के लिए साइज स्क्वायर यहाँ पे प्लॉट कर दिया, आर यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ ऐसा आएगा, जब आर की वैल्यू 0 है तो साइज स्क्वायर मैक्सिमम, एंड जैसे जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, ये आपका डिक्रीज होता जाएगा। बट ये कभी भी आपका 0 नहीं। अभी ना थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा लिंक भेजता हूँ आपको मैं, दोबारा कनेक्ट कर लेना, पासवर्ड तो सेम ही रहेगा। अच्छा, ये यहाँ पे आपका क्या होगा, कभी भी ये मैच नहीं करेगा। बेसिकली जो साइज स्क्वायर है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। नाउ अब इसमें क्या होगा, इसकी शेप को अगर 1s की शेप को ड्रॉ करते हैं, इट वुड बी, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को स्मॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी है, तो यहाँ पे मैं जब डॉट्स, ये डॉट्स क्या है, दिस डॉट्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। हेलो, यस सर। ये हम कर रहे थे डेंसिटी वाला कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। Size square is a function of radial distance, that is the probability density. Probability density, ठीक है, probability density as a function of radial distance from the nucleus. Now जो probability density है, it will give the picture of shape of orbital.
कि मेरा जो ऑर्बिटल है, कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ तो मेरी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहाँ कहाँ है, उसके बेसिस पे मैं एक पिक्चर को ड्रॉ करूंगा. दैट पिक्चर विल गिव द शेप ऑफ ऑर्बिटल. सबसे पहले बात करता हूँ मैं वनएस ऑर्बिटल की, अभी समझाता हूँ. सबसे पहले बात करूंगा मैं वनएस ऑर्बिटल की. अगर वनएस ऑर्बिटल को प्रैक्टिकली देखा जाए, इसकी साइज स्क्वायर और आर में क्या रिलेशन है, तो अगर आर की वैल्यू 0 है तो साइज स्क्वायर की मैक्सिमम आपकी क्या है, वैल्यू है. इट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू. वो कितनी है, मैक्सिमम है. और जैसे जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये आपका आर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज स्क्वायर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. बट एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो साइज स्क्वायर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके. अब इसकी सर शेप. अगर हाँ बोलिए बोलिए. सर अगर आर 0 है तो साइज स्क्वायर भी तो 0 होगा, क्योंकि आर तो साइज स्क्वायर के साइज इक्वल है. नहीं, एक्सपोनेंशियल में यही प्रॉब्लम होती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके 0 कभी नहीं होते किसी भी वैल्यू पे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, दैट इज बेसिकली y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x. ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये कभी भी वैल्यू इसकी 0 नहीं हो सकती. इट कैन हैव नेवर वैल्यू ऑफ 0. ठीक है, ये सपोज करो y की ई x की किसी भी चीज वैल्यू के लिए y की कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती. ये इसकी खासियत है. ओके. ये इसको डिटेल में आप मैथमेटिक्स में करोगे. ठीक है, अभी इसके डिटेल में नहीं जाते हैं. मैं ये कह रहा था कि वाई स्केयर इज इक्वल टू सॉरी साइज स्केयर इज इक्वल टू साइज स्केयर इज द फंक्शन ऑफ आर. नाउ ये डिपेंड कैसे कर रहा है, अब देखो कि आपकी साइज स्केयर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब है, जब आर अप्रोचेस टू 0, और मिनिमम कब हो रही है, जब आपकी आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो जो इसकी शेप होगी, दिस विल बी वेरी स्मॉल न्यूक्लियस. तो यहाँ पर मैक्सिमम इसकी क्या होगी, डेंसिटी. जो मैं ये इसको ड्रॉ कर रहा हूँ दिस सर्कल्स को, अच्छा डॉट्स को, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ये जो आपकी डॉट्स हैं, दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तो जब न्यूक्लियस के पास में है तो ये आपकी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो ये डॉट्स क्या हैं आपकी, थोड़ी वैनिश होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कम होनी स्टार्ट होगी. बट इनफाइनाइट पोजीशन पे भी ये आपकी क्या होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, दो इट इज वेरी वेरी लेस. ओके. तो ये जो शेप है, ठीक है, दिस शेप वनएस की, तो ये आपकी क्या है, स्फेरिकल. तो यानी कि जो वनएस ऑर्बिटल होती है उसकी स्फेरिकल शेप होती है. क्या यहाँ पर किसी पॉइंट पे द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है, नहीं है. तो यहाँ पर जो इसकी रेडियल नोड होगी, मतलब नोड का मतलब क्या है, एट द पॉइंट वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, इसकी कोई रेडियल नोड नहीं होती है, 0 रेडियल नोड. दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल. अब बात आती है 2s की. 2s के केस में क्या होता है, सर वनएस ऑर्बिटल के केस में कोई नेगेटिव नहीं होगा ना? नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती कभी भी. जो यस ये सर. फंक्शन था ना, अभी बताता हूँ अभी क्लियर हो जाएगा.
देखो अभी जो आपने पूछा है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप वेव फंक्शन की बात करोगे, जो इसके वेव फंक्शन की बात करोगे, 2s के वेव फंक्शन की बात करोगे, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि वो पहले पॉजिटिव होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव होके ऐसे जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेव फंक्शन आपका पॉजिटिव था r के साथ में, फिर नेगेटिव हो गया था, ठीक है। अब जब मैं साइज स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ये आपका जो ग्राफ आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस पॉइंट पे जीरो होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा आपका, ये ऐसे इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, बट कभी भी ये आपका एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। अब जो ये आपकी ये वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, नोड, जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगी, दिस विल बी नोड। तो इन द केस ऑफ 2s आपकी इनिशियल क्या है, देयर इज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर विद आर के साथ वो डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर आपकी ये डिक्रीज हुई, पर जीरो कभी नहीं हुई। अगर इसकी शेप को मैं ड्रॉ करता हूँ तो इनिशियली क्या होगा, देयर विल बी वेरी हाई डेंसिटी। इनिशियली इसकी डेंसिटी जो होगी बहुत हाई होगी, फिर क्या होना, डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा, इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। एक मिनट रुको, थोड़ा ढंग से बनानी है। देखो इस पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ये ऐसा होगा, शुरुआत में क्या होगा, 2s के बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फिर विद पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, इट विल गेट स्टार्ट डिक्रीजिंग। फिर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आपकी बिल्कुल जीरो होगी, उसको नोड बोलेंगे। फिर क्या होगा, इट गेट स्टार्ट इंक्रीजिंग।
फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो ये पॉइंट है, दिस रीजन इज कॉल्ड द नोड। ठीक है, अब जैसे ये चीज थी आपकी, एक मिनट, इनिशियली हाई, फिर आर के साथ में डिक्रीज हुई, जीरो होगी, इस पॉइंट पे जीरो होगी, फिर इंक्रीज हुई, ठीक है, फिर डिक्रीज होगी, पर जीरो कभी नहीं होगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, दिस इज द कॉल्ड द नोड। ठीक है, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द नोड। अगर आप 3s की बात करते हैं, उस केस में क्या होगा, देयर विल बी साइज स्क्वायर। ठीक है, आर ये रहा, नाउ इनिशियली इट विल बी वेरी हाई, फिर जाके क्या होगी, जीरो हो जाएगी एक पॉइंट पे। ठीक है, फिर इंक्रीज होएगी, फिर मैक्सिमम जाएगी वैल्यू, पीक वैल्यू को अटेन करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, फिर आपकी क्या होगी, डिक्रीज करके ये इट विल गेट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नोड, दिस इज नोड। अगर इसमें इसी चीज को मैं लेके जाता हूँ, तो अगर मैं 3s की ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा 3s के केस में, यहाँ पर इंक्रीज होगी और यहाँ पे फिर एक आपका नोडल पॉइंट आएगा। सर नेगेटिव के केस में कैसे ड्रॉ करेंगे? नेगेटिव इस केस में आएगा ही नहीं, नेगेटिव इस केस में नहीं आएगा। नेगेटिव आपका आता है वेव फंक्शन के केस में, जो आपका वेव फंक्शन होता है ना साई, ठीक है, वो आपका नेगेटिव होता है। साइज, जो साइज स्क्वायर है, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो आर पे हाँ, वो मैंने आपको बताया था, दैट इज डिपेंडेंट ऑन आर। साइज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता, आर की वैल्यू बेशक नेगेटिव हो, पर साइज स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसमें हाँ बोली, हेलो सर, इसमें जितनी वैल्यू n की होगी उतने ही हाँ, नोड्स होंगे। उतनी नोड्स होगी। ठीक है, नहीं, जैसे 1 की वैल्यू है, n इजिकल टू 1s है, 1s में कोई नोड नहीं है, 2s में एक नोड होगी, 3s में 2 नोड होंगी, 4s में 3 नोड होंगी, 1s में कोई नोड नहीं है। हेलो, ओके 1s हैज नो नोड। ठीक है, 2s में आपकी एक नोड होगी, 3s में आपकी 2 नोड होगी। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पीक वैल्यूज है, ये वाली जो पीक वैल्यू है वो इससे कम ही होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे सपोज करो अगर मैं 4s को ड्रॉ करता हूँ, तो इट वुड बी, ये 4s के लिए है, तो इसमें 1 2 3, ठीक है, 3 नोड्स होंगी, देयर विल बी 3 नोड्स। ओके, अब यहाँ पे जो इस पीक की वैल्यू है, इससे कम है, इससे इसकी कम है। ठीक है, मतलब ये चीज में ध्यान रखना है, इसकी इससे ज्यादा होगी, इसकी डिक्रीज करती जाएगी। 1s में कोई नोड नहीं, 0 नोड, 2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड्स, और 4s में आपका 3 नोड्स, सो ऑन। इसका एक फार्मूला है, वो बाद में बताऊंगा आपको। और ये रेडियल नोड्स हैं, दीज आर रेडियल नोड्स, क्योंकि जब मैं मूव कर रहा हूं फ्रॉम द न्यूक्लियस
along the radius, तब ये आपकी आ रही है। एक एंगुलर नोड भी होती है, वो बाद में समझाऊंगा। पहले ये रेडियस नोड, रेडियल नोड समझ में आई आपको क्या चीज है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। ये तो बात थी सिर्फ एस ऑर्बिटल की। अभी हमने करना है 2p और 3d को भी स्टडी करना है। अभी 2p लेते हैं। सर आर नेगेटिव के केस में सर आप जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन वाला डायग्राम बनाया था वो आर नेगेटिव के केस में कैसे बनेगा? आर यहाँ पर नेगेटिव होगा नहीं ना, वो तो मैं आपको वैसे ही सपोज करके बता रहा हूँ। आर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस को ले रहे हो यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो भी यूनिडायरेक्शन ले रहे हो। न्यूक्लियस के अंदर तो जा ही नहीं सकते आप यहाँ यस पर सर। नेगेटिव डिस्टेंस तो ले ही नहीं सकते हो कभी। ओके सर। आप न्यूक्लियस से बाहर ही जाओगे ना, न्यूक्लियस के अंदर तो जीरो वैल्यू से चल रहे हो आप, तो नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते हो आप। ओके सर। अच्छा, 2p की शेप, इसको जरा ध्यान से देखना। जो 2p का फंक्शन है, दिस इज साइज स्क्वायर और आर के, इनिशियली आपका जीरो होता है, आर जीरो है तो साइज स्क्वायर भी जीरो है, फिर इंक्रीज करता है, फिर आपका डिक्रीज करता है, पर जीरो कभी नहीं होता। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ 2p। अब इसकी शेप कैसी होगी? नाउ शेप विल बी सच लाइक दिस। यहाँ पे जीरो है, ठीक है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे जीरो है, फिर आपका ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस किस्म की ये बाउंड्री सरफेस इसकी बन गई। दिस इज ऑफ योर 2p, ये आपकी 2p की शेप है। दिस इज द शेप ऑफ 2p। ओके, अब यहाँ पर दिस इज द शेप ऑफ 2p। अगर मैं 3p की बात करता हूँ तो उस केस में क्या होगा? दिस इज साइज स्क्वायर, दिस इज आर, इनिशियली जीरो, इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज होएगी, डिक्रीज होकर वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, फिर इंक्रीज होएगी, एक पीक वैल्यू ले ली, फिर आपकी डिक्रीज होगी, पर मैच नहीं, कभी उसको मैच नहीं करेगी एक्सिस को। अब इसकी शेप क्या होगी? इट विल हैव ए शेप लाइक दिस। सर स्कूल एग्जाम्स में ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल। सर इसमें तो काफी नोड्स आ गए सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। नोट्स काफी नहीं आई, काफी नोट्स सर इसमें तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, दिस वन, वो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज वन, इसको वन ले लेता हूँ, ये आपकी ये चीज है वन। ठीक है, उसके बाद जो ये वैल्यू जीरो आई, इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, यहाँ पर ये नोड कौन सी होगी? दिस थिंग। यहाँ से मैं रेडियस को बाहर लेके जा रहा हूँ, तो ये यहाँ तक तो ठीक है।
जब इसकी बात करते हैं इतने पोर्शन की, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस रीजन को क्या बोलूंगा, दिस विल बी कॉल्ड द नोड। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर आ गई, ठीक है, ये सेकंड रीजन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने एक बाउंड्री को ड्रॉ किया हुआ है, पर दरअसल ये बाउंड्री क्या होती है, इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करती है, वो मैंने सारा ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, इन द केस ऑफ 3p देयर इज वन रेडियल नोड, यहाँ पर एक आपकी रेडियल नोड पिक्चर में आ गई। और अगर सपोज करो 4p की बात करता मैं, तो उस केस में क्या होना था, उस केस में इस किस्म का डायग्राम होना था, ठीक है। एक नोड ये होगी थी, एक नोड ये, उस केस में आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनना था, लाइक दिस। दो रेडियल नोड आ जानी थी आपकी, एक नोड ये भी होनी थी। ओके, ये बात समझ में आती है? सर जितने नोड्स हैं ये किसी पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑर्बिटल कौन सी है, उसकी शेप कौन सी है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता है, आपको पता नहीं, आपको बताया जाएगा, आपको वो याद रखना है। जैसे मैंने 1s के केस में बताया कि उसकी डिपेंडेंस जो आपकी साइज स्क्वायर और r के बीच में कैसी है 1s के केस में, और जो आपका 2s के केस में कैसी है, 2p के 3s के केस में कैसी है, और साइज स्क्वायर की जो डिपेंडेंस है वो आपकी 2p के केस में कैसी है, ये चीज आपको याद करनी है। ये एक्सपेरिमेंटल ड्रिवन चीज है, पर ये आपको याद यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट से ड्राइव हुई है कि हाउ साइज स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन द 2p। उसी से आपकी जो है, जो ऑर्बिटल ऑफ द, जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल है वो डिराइव हुई है। हेलो, यस सर। ठीक है। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर नोड। अब ये एंगुलर नोड क्या चीज है, रेडियल नोड का मतलब समझ में आता है कि जैसे जैसे हम रेडियल डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं अलोंग द रेडियस, हम रेडियस से दूर होते जा रहे हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जिस भी रीजन में जीरो है, दैट थिंग इज कॉल्ड द नोड। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, the possibility of finding the electron at some point is zero, that point is called the node, that is called the radial node। अब एक दूसरी चीज भी होती है जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड एक पर्टिकुलर एक्सिस या एंगल या प्लेन पे होती है। अब इसका मतलब क्या है, अभी समझाते हैं। पहली बात तो इसकी शेप की बात कर लेते हैं। जो आपको ये शेप नजर आ रही है इसकी, ये जो शेप है, व्हाट इज दिस शेप, इस शेप को क्या बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में वेग आइडिया होता है, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस शेप इज लाइक दिस, इस शेप को आप क्या बोल सकते हो, इंफिनिटी। कोई भी वेग आइडिया नहीं, इट इज कॉल्ड द डम्बेल। इंफिनिटी कैसे? हेलो, हाँ, इट इज कॉल्ड द डम्बेल। अब ये डम्बेल क्या चीज है, जो वेट उठाने वाले होते हैं, दैट इज द डम्बेल। अब कहोगे सर ये ऐसी शेप तो लगती नहीं है, देखो परफेक्ट शेप तो लगती नहीं है, बट कुछ तरीके की, उसी की तरीके की है डम्बेल। डम्बेल आपका कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्ट शेप तो नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, वो कुछ इस किस्म की फॉर्म का होता है डम्बेल, ठीक है। तो मतलब सॉर्ट ऑफ दैट शेप लगती है, तो इसको डम्बेल शेप बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डम्बेल शेप। ओके, अब यहाँ पे बात आती है आपकी एक्सियल नोड की।
ठीक है, या एंगुलर नोड की, सॉरी एंगुलर नोड की बात आती है, या एक्सियल नोड भी बोल देते हैं, या उसको एक तीसरा नाम है, उसको प्लेनर जो है प्लेनर नोड भी बोल सकते हैं। अब ये एंगुलर नोड या एक्सियल नोड या प्लेनर नोड का मतलब क्या है, उसको समझ लेते हैं। टू पी, एल की वैल्यू 0, सॉरी एल की वैल्यू 1 होगी, तो एम की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1। 2p तो आपकी सब शेल है, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स पॉसिबल है वो कौन कौन सी हैं, दैट इज 2p 0, 2p -1, 2p +1, ये इसकी डेजिग्नेशन है, ठीक है, ये तीनों की डेजिग्नेशन। अब इतना तो आपको पता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्पेस में है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है, ठीक है। जो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है उसको हमेशा जो है मैं 3 एक्सिस में डिफाइन करता हूँ, वो होते हैं एक्स, वाई, जेड, ये भी आपको पता है। जो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है उसको मैं हमेशा एक्स वाई जेड में जो है एक्सप्रेस करता हूँ। उसी तरीके से ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, दीज 3 ऑर्बिटल्स, इसको भी मैं 3 एक्सिस में प्लेस कर सकता हूँ, एक 2px, एक 2py और एक 2pz। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाते हैं भैया। जो आपकी 2px ऑर्बिटल है वो क्या होगी, दैट विल बी ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, दिस विल बी कॉल्ड द 2px। जो 2py होगी it will be oriented along your y axis, it will be called the 2py। और जो z होगी it will be called the 2pz। ये बात समझ में आती है आपको? हेलो, यस इसमें कोई इशू नहीं? नो जनरली क्या होता है, जो 2px होता है वो +1 या -1 कुछ भी हो सकती है, 2py भी आपकी -1 या +1 क्या कुछ भी हो सकती है। जो 2pz होती है वो 0 होती है, 2pz इज इक्वल टू 2p0, ये हम मान के चलते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू है दैट इज 2pz, ठीक है, ये हमेशा मानते हैं हम लोग। अच्छा, ये इतना चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? हेलो, सर अगर 2pz यस की वैल्यू 0 होती है तो सर उसको ड्रॉ करना ही, फिर ड्रॉ करना जरूरी थोड़ी ना होगा। दोबारा बोलना। सर अगर 2pz की वैल्यू 0 है तो उसको ग्राफ में ड्रॉ करना जरूरी थोड़ी ना होगा, 2py और 2px ही ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ। नहीं, यहाँ पर ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्रॉ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं, जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2p 2p0, 2p -1, 2p+1, ये तीनों जो हैं एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं तीनों की एक ओके सर। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, ठीक है, ओके, और वो एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है वो तीनों आपस में परपेंडिकुलरली जो है वो आपकी अटैच्ड है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनकी एक डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है। ओके वो ऐसा नहीं है कि वो स्पेस में जैसे मर्जी है। जैसे आपका सपोज करो 1s 2s 3s, ठीक है, 4s, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी कोई डायरेक्शनल ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि ये स्फीयर है। जो स्फीयर को आप जिस मर्जी एंगल से देख लो वो आपको स्फीयर ही नजर आएगा, उसकी डायरेक्शनल ओरिएंटेशन का मतलब नहीं है। पर इनकी डायरेक्शनल ओरिएंटेशन का मतलब है जो एक ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस में है, दूसरी वाई में है, तीसरी जेड में है। ओके, अब इसका मतलब क्या वो भी समझाता हूं मैं आपको, वो क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोज करो मैं 2px की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपकी 2px ऑर्बिटल है। दिस इज y, दिस इज z, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको? हेलो, यस यस सर। सर अब जरा ध्यान से देखना जरा। थोड़े बहुत प्लेन्स किए हैं आप लोगों ने? चलो कोई बात, इसको जरा ध्यान से देखना जो मैं अभी ये हैचिंग कर रहा हूं। दिस इज द YZ प्लेन। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर नाउ दिस YZ प्लेन, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास कर रहा है। हेलो, यस सर ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। और यहाँ पे इस ओरिजिन पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो इज 0। बट ये रेडियस के लॉन्ग नहीं है, दिस इज नॉट द रेडियस लॉन्ग। वो तो 0 पे था, उससे तो स्टार्ट हुआ था। आगे जाते हुए रेडियस में कोई आपको जो नोड मिली नहीं थी। बट यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये YZ प्लेन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0। इस नोड को जो नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर नोड, या इसको प्लेनर नोड बोलते हैं, या एक्सियल नोड भी बोल सकते हैं। तो YZ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज द एंगुलर नोड। कौन सी ऑर्बिटल में? 2px में। 2px ऑर्बिटल हैज वन एंगुलर नोड, और वो एंगुलर नोड कौन सी है? दैट इज द YZ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बात समझ में आती है? यस सर सर एक बार रिपीट कर दो। हेलो, सर एक बार रिपीट कर दो सर ये लाइन। कर देता हूँ। देखो, दो टाइप की नोड है, एक तो है रेडियल नोड और दूसरी आपकी एंगुलर नोड। एंगुलर नोड एक या प्लेनर नोड भी बोल देते हैं, जो एक प्लेन के अलोंग होती है। जो रेडियस है, जो आपकी रेडियल नोड होगी वो रेडियस के अलोंग आएगी कि यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे जैसे इस ओरिजिन से दूर जा रहे हैं और वहां पे कहीं पे आपको पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 नजर आ रही है, तो उसको तो मैं बोलूंगा रेडियल नोड, दैट विल बी कॉल्ड द रेडियल नोड। और अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे या पर्टिकुलर प्लेन में पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 मुझे नजर आ रही है, तो उसको मैं बोलूंगा एंगुलर नोड। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो ओरिजिन था, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 थी, बट ये रेडियस के लॉन्ग नहीं आ रही थी, यहाँ से तो शुरू हुआ था, तो ये रेडियस का पार्ट नहीं था, यहाँ से तो शुरू हुआ था। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेन को ड्रॉ किया, वो प्लेन क्या है? YZ प्लेन। YZ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक वाईजेड प्लेन को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज करो मैं वाईजेड प्लेन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज ऑल्सो ए वाईजेड प्लेन, ये भी आपका एक वाईजेड प्लेन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वाईजेड प्लेन, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू रीजन। यहाँ पर आपकी डेंसिटी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी यहीं पर जीरो होगी ऑन दिस प्लेन, वाईजेड प्लेन पासिंग थ्रू द रीजन। इट विल बी ए प्लेस या इट विल बी ए रीजन ऑफ एंगुलर नोड। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि 2px जो ऑर्बिटल है उसकी एक एंगुलर नोड है, एंड दैट एंगुलर नोड इज द वाईजेड प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कि 2s में पॉसिबल नहीं थी या 1s में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि 1s आपकी स्फेरिकली सिमेट्रिकल थी। वहां पे किसी भी प्लेन को आप लेके आ जाओ, कोई ना कोई तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल ही जाएगी, बट 2px में ये पॉसिबल है। तो 2px में एंगुलर नोड तो एग्जिस्ट करती है, पर उसमें रेडियल नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये एंगुलर नोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? सर हेलो, हर एक प्लेन यस में सर। यही हाँ कंसेप्ट बोलिए। यूज होगा सर? जैसे हम एक्स वाई प्लेन लें तो तब भी यही कंसेप्ट यूज होगा? नहीं, हाँ, अगर एक्स वाई प्लेन लिया, अगर सपोज करो आप एक्स वाई प्लेन ले रहे हो, वेरी गुड, अभी बताता हूँ। तब नहीं होगा, अब तब क्या होगा तब बताता हूँ। सपोज करो ये 2px है, दिस इज द 2px, ठीक है, और ये आपका y है, दिस इज द x प्लेन। जब आप एक्स वाई प्लेन ले रहे हो, यू आर टेकिंग द एक्स वाई प्लेन, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिल रही है। अगर एक्स वाई प्लेन ले रहे हो तो 2px में तो यहाँ पे तो ये 2px ऑर्बिटल है, तो ये तो यहाँ पर मिल रही है। तो अगर मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं होगी कभी भी, क्योंकि 2px ऑर्बिटल में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो यानी कि एक्स वाई प्लेन डज नॉट हैव एंगुलर नोड फॉर 2px, बट किसी के लिए जरूर होगा। ये किसके लिए होगा? अगर मैं एक्स वाई प्लेन को ले, हेलो हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो आपका एक्स वाई प्लेन है, ये किसी के लिए तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? ये किसी के लिए एज ए एंगुलर नोड का काम करेगा। किस ऑर्बिटल के लिए करेगा, बता सकते हो? सर वाई जेड। नहीं नहीं, एक्स वाई प्लेन किसके लिए काम करेगा एज ए एंगुलर प्लेन या एंगुलर नोड का? सर 2py। 2pz के लिए। अभी बताता हूँ एक मिनट।
ये जो YZ प्लेन है, ठीक है, ये 2px के लिए एक थी पासिंग थ्रू द रीजन, ये काम करेगा एज ए एंगुलर नोड का काम। अगर मैं बात करता हूँ 2py की, ये मेरी होगी 2py। अब 2py के लिए, ठीक है, कौन सा होगा, इट वुड बी ये आपका जो XZ प्लेन होगा, ठीक है, XZ प्लेन, ठीक है, ये आपका एज ए एंगुलर नोड का काम करेगा। और 2pz के लिए अगर देखा जाए, टू पी जेड के लिए देखा जाए तो ये आपका जो एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है, इट विल एक्ट एज ए एंगुलर नोड। सही है, YZ प्लेन नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वाई जेड कैसे है, देखो जो जेड होता है मैंने इंक्लाइन सॉरी को किया है, मतलब देखो ये आपकी 2D फिगर है तो ऑब्वियसली है कि ये आपका क्या होगा, जेड को मैंने इंक्लिनेशन में शो किया है तो एक्स वाई प्लेन तो आपका यही बनेगा ना। वो ठीक है, वो पिक्चर में थोड़ा ये क्लियर नहीं हो पाएगा, बट मतलब आप बाकी दो फिगर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ओके सर। सर इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ पे पूरा कर्व आ रहा है वो उसी का ही प्लेन होगा, जैसे XY प्लेन में टू पी जेड का पूरा कर्व आ रहा है ओरिजिन टू ओरिजिन वाला, तो वो उस प्लेन में लाई करेगा। बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है जो एंगुलर नोड है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर नोड, कि जहाँ पे आपका एक एंगुलर प्लेन जो आपका नोडल, इसको नोडल प्लेन भी बोल देते हैं, दिस YZ प्लेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नोडल प्लेन, जहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर प्लेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम एंगुलर नोड बोल देते हैं। तो 2px में भी आपकी एक एंगुलर नोड होगी, 2py में भी, 2pz में भी। सिमिलरली अगर मैं 3px की बात करता हूँ, 3py की बात करता हूँ और 3pz की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी एंगुलर नोड आपको 1 1 ही मिलेगी। वो कैसे, अगर 3pz की बात करता हूँ तो 3pz की शेप कैसी आ जाएगी, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर पंगा क्या है, यहाँ पर YZ तो इसका प्लेन रहेगा। अब जो ये वाली नोड है, दिस इज ए नोड बट इट इज ए रेडियल नोड, तो एंगुलर नोड तो एक ही रहेगी, रेडियल नोड एक इसमें और ऐड होगी। अगर सपोज करो मैं 4px की बात करता हूँ तो 4px के केस में क्या होगा, एक ये इस किस्म की और चीज आ जाएगी। 3 रेडियल नोड एंड 1 एंगुलर नोड। हाँ, वेरी गुड। उस केस में क्या हो जाएगा, जो रेडियल नोड होगी वो आपकी दो हो जाएंगी, देयर विल बी 2 रेडियल नोड, बट आपकी जो एंगुलर नोड रहेगी वो एक ही रहेगी, दैट इज YZ प्लेन। ठीक है, ओके। अब यहां से यस आप सर। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। ओके, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेसन है, वो क्या है,
टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये कैसे कैलकुलेट करनी होती है? पहला, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल, जो एल की वैल्यू है उतनी एंगुलर नोड है। सेकंड, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये क्या होंगी? इट वुड बी इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, वो क्या होगी? l प्लस n माइनस एल माइनस 1, मतलब दिस प्लस दिस कर दिया तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये कर सकते हैं n माइनस एल से एल कट गया तो इट इज n माइनस 1। तो ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी देख लेते हैं। जैसे सपोज करो 1s है, 1s में एंगुलर नोड क्या होगी? l की वैल्यू क्या है इसके लिए? 0, तो इसमें एंगुलर नोड क्या होगी आपकी? 0, ठीक है। रेडियल नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, इट वुड बी n माइनस एल माइनस 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0, तो रेडियल नोड भी क्या होगी इसमें? 0, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होगी? 0। अब बात करते हैं 2s की, तो l की वैल्यू क्या है? 0, तो एंगुलर नोड क्या होगी आपकी? 0। रेडियल नोड क्या होगा? रेडियल नोड इट विल बी इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, ये क्या होगी अगली आपको? सॉरी, 2 माइनस 0 होगी, 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1, तो रेडियल नोड कितनी होगी इसमें? 1 होगी, और टोटल नंबर नोड्स क्या हो जाएंगी? 1, n माइनस 1 सिंपली। अगर सपोज करो मैं 3p में बात करता हूँ, तो l की वैल्यू क्या है? 1 p के लिए, तो एंगुलर नोड कितनी होगी आपकी? 1। रेडियल नोड कैसे निकालेंगे? रेडियल नोड विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और टोटल नोड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये बात समझ में आती है? यस सर। अभी ये तो हमने किया है 1s, मतलब s का किया है और 3p का किया है, पर 3d का भी एग्जिस्ट करता है। नाउ 3d का क्या है उसको देखते हैं। नाउ ये जो 3d है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो आपकी d की वैल्यू होती है, सॉरी l की वैल्यू होती है -2, ठीक है, 3d के लिए। तो वैल्यूज क्या होगी पॉसिबल? जो m की पॉसिबल वैल्यूज है दैट इज -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? 3d -2, 3d -2, 3d -1, 3d 0, 3d +1, 3d +2, ठीक है। अब ये तो मैंने -2, -1, 0, +1, +2 की टर्म में लिख दी, बट इनको भी मैंने क्या करना है? x, y और z की टर्म में इनको मैंने एक्सप्रेस करना है, इनकी शेप्स को मैंने ड्रॉ करना है। तो वो कैसे ड्रॉ होंगी वो ड्रॉ करके दिखाते हैं भैया। देखो, जो इनकी नेम है नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा।
वो है आपका 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, 3D Z स्क्वायर। ये तीनों एक जैसी हैं, ये दोनों कुछ कुछ एक जैसी हैं। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से करूँगा। x x डैश y y डैश। अब जरा ध्यान से देखना, ये 45 पे लाइंस है, 45 डिग्री। ये आपकी दो लोब ऐसे आ गई। ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन में, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, उसमें 45 डिग्रीज पे लाइन ड्रॉ कर ली, तो वहां पे आपकी ये इस किस्म की लोब्स आ गई। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका नाम क्या हो गया? दिस इज द डबल डम्बेल। ये दो डम्बेल हैं आपके, डबल डम्बेल शेप है, और इसको बोलते हैं 3D XY। दिस इज अ 3D XY। XY प्लेन में 45 डिग्रीज पे दो लोब है आपकी, तो इसको बोलते हैं 3D XY। फिर इसको ले लेते हैं हम Y और Z। आपको सर ये एक्सिस तो चेंज कर लिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली मैं YZ में आपको बना रहा हूँ। ठीक है, वो तो रिफरेंस का फर्क है, दूसरे में भी ड्रॉ कर सकता हूँ, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने YZ ले लिया, तो यहाँ पर आपका वही 45 डिग्री पे हो जाएंगे। तो दिस इज योर 3D YZ। सिमिलरली X Z Z, तो ये मेरी होगी 3D ZX। इनको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। XY प्लेन है, YZ प्लेन है, ZX प्लेन है। उस प्लेन में 45 डिग्रीज पे इसकी लोब जो है वो आपकी जो है एसोसिएटेड है। तो दैट इज योर सिंपली योर आपकी ऑर्बिटल्स की शेप बन गई। ठीक है, ये बात समझ में आती है। डबल डम्बेल है तीनों की तीनों। दिस इज ओके। यस सर। फिर 3D X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। दिस इज इंटरेस्टिंग। दिस इज X X डैश Y Y डैश। X और Y के लॉन्ग, ठीक है, लोब्स हैं, तो इसको क्या नाम बोल दूंगा? 3D X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। जो X एक्सिस और Y एक्सिस के अलॉन्ग आपकी लोब्स आ गई, तो इसको भी मैं डबल डम्बेल ही बोलूंगा। ठीक है, तो ये 3D X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ओके, अब इसमें बचती है एक लास्ट, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज द 3D Z स्क्वायर।
अब इस केस में क्या है, दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है, वो एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग परपेंडिकुलर होती है। किस तरह होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेप है इसकी। तो अगर सर ये क्या शेप बनाई है, अब ये शेप बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, आपका बीच में एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है इस किस्म का, ओके। एंड ये जो शेप है आपकी, ये आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो रही है इस तरीके से। अब इसका जो नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेट शेप। अब ये डेफिनेट शेप का मतलब क्या है, डोनट भी बोल देते हैं। ये जो एक आपका होता है नहीं खाने वाला, ये खासकर अमेरिका वगैरह में ज़्यादा खाते हैं, डोनट बोलते हैं, ठीक है इसको। उस किस्म की शेप होती है खाने वाला, थोड़ा उसका बना होता है, मीठा सा होता है ये, ठीक है। आजकल तो ये मिलता है यहाँ पे भी, ये क्या नाम है इसका, ये बरिस्ता वगैरह में मिल जाता है डोनट सा, ठीक है। वो ये आपकी जो है इस किस्म की शेप है कि एक सर्कुलर रिंग जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है। देयर इज अ रिंग, ये एक रिंग है। दिस रिंग इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई, आपका जो है वो क्या कहते हैं एक्स वाई प्लेन में। जैसे सैटर्न नहीं होता, सैटर्न में एक रिंग के छल्ले होते हैं, जो सैटर्न प्लैनेट होता है उसमें एक रिंग के छल्ले होते हैं जो उसके एक्सिस जो होता है मिडल होता है वहां पे प्लेस्ड होते हैं। तो ये उस किस्म का एक किस्म का छल्ला सा है। देयर इज अ रिंग प्लेस्ड ऑन द एक्स वाई प्लेन। और जो ये ऑर्बिटल है, जो लोब है, ये दिस लोब जेड स्केयर, सॉरी ये जो लोब है जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये आपकी यहाँ पर कनेक्टेड है विद इस पॉइंट पे जीरो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। तो बड़ी ये टिपिकल सी शेप है। अगर सपोज करो ये रिंग ना होता, अगर ये रिंग ना होता तो सिंपली इसकी शेप क्या होनी थी, डम्बेल शेप होनी थी सिंपली। बट ये रिंग की वजह से जो इसकी शेप है, इसको डोनट शेप बोलते हैं। डोनट जो खाने वाला डोनट होता है उस किस्म की शेप इसको बोलते हैं कि इसकी डोनट शेप है, ओके। तो ये 3D जेड स्क्वायर की बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये शेप है, बनाने भी आ जाती है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, 3D एक्स वाई, 3D वाई जेड, 3D जेड एक्स, 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3D जेड स्क्वायर, ओके। ये शेप समझ में आती है, इसमें कोई डाउट, नो सर। ठीक है। फिर जो होती है 4f ऑर्बिटल्स, उसकी जो शेप्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो सीबीएसई में, ना जेई मेंस में, ना जेई एडवांस में। कहीं आपको बुक्स में, ठीक है, शायद मिल जाए 4f, या किसी स्टूडेंट्स के नोट्स में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में 4f जो शेप्स हैं वो डाली गई हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है, ना उन पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जेई मेंस एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ना सीबीएसई के सिलेबस में, तो वो करवाने का कोई पर्पस नहीं है, ओके। ओके सर। ठीक। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सपोज करो यहाँ पे आपकी 4D एक्स वाई, 4D वाई जेड, 4D जेड एक्स, या आपकी ये 4D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या 4D जेड स्क्वायर होता, तो उसकी शेप क्या होनी थी, कुछ नहीं होना था उसकी शेप में, कुछ नहीं होना था उसकी शेप में, ये फर्क आ जाना था। यहाँ पर एक रेडियल नोड इंट्रोड्यूस हो जानी थी, मतलब जहां जहां पे आपको ये लोब नजर आ रही है, जैसे जो काम हमने उसमें 3P में किया था वही काम इधर हो जाना था।
ठीक है, बाकी सब में भी ये चीज है। आई बात समझ में ये? यस सर। सर। हाँ बोलिए। क्लास कब चले आज वाली? क्लास 7 सर PM। आज वाली क्लास कब चली? कितने बजे क्लास है आपकी? हेलो, सर 7:15 पे टेस्ट शुरू होता है। कौन सी क्लास है आपकी आज? फिजिक्स फिजिक्स की? टेस्ट है। फिजिक्स की क्लास है? हेलो। टेस्ट टेस्ट है अच्छा टेस्ट। टेस्ट, अच्छा अच्छा, ये शिट 7:10 पे है आपका। बस मैं फ्री कर रहा हूँ, बस तो इसको फिनिश ही कर रहा हूँ। 7:15 पे आज। बस कर रहा हूँ, बस बस फिनिश ही कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितनी होंगी, मुझे बताओ। जैसे डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? सर 3 नहीं 2। 2। तो एंगुलर नोड्स 2 बननी चाहिए। एंगुलर नोड इसमें 2 कहाँ पे होंगी, देखो बताओ मुझे। वेयर विल बी 2 एंगुलर नोड्स, बता सकते हो? सर ओरिजिन पे। हेलो। सर ओरिजिन पे। और रीजन पे प्लेन कौन सा होगा? वो प्लेन कौन सा होगा जहाँ पे होगी? जैसे उसमें एक प्लेन सर आ रहा था, वाइज। तो इसमें प्लेन कौन सा होगा? सर वाइजेड। कौन सा? वाइजेड। सॉरी सर एक्स वाई। नहीं, ध्यान से देखो। सर किस पे? हाँ बोलिए बोलिए। सर किस पे आपने कहा था, एक बार बताना। मैं कह रहा हूँ इसमें 2 एंगुलर नोड्स कौन सी होंगी? 2 एंगुलर प्लेन होने चाहिए ना, नोडल प्लेन। यस सर। सर सर सेकंड जेड पे वाले होगी केस वो। में ना। हाँ बोलिए बोलिए। सर वाइजेड पे होगी। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, बोलिए। सर वाइजेड पे होगी। वाई जेड पे अगर आप बात करते हो 3D XY की, जैसे सपोज करो ये चीज है आपकी। एक मिनट। हाँ अब बताइए, इसमें कौन सा प्लेन होगा? सर एक्स वाई। कौन सा? चलो ये ना एक बार सोचना, मैं नेक्स्ट टाइम बताता सर हूँ। एक्स वाई पे। एक्स वाई प्लेन एक्स होगा? जेड और वाई जेड। ये नहीं, इतना सिंपल नहीं है, सोचना जरा इसको, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इसको लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें क्लास को मैं अभी ओवर कर रहा हूँ। मैं कुछ होमवर्क दूंगा, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। वो लास्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए? हेलो। यस सर। लास्ट के क्वेश्चंस कर लिए आपने? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा यशित, आपने जाना, आप चले जाओ, ठीक है? आप जरा स्टे करो इधर, आपने क्लास को लीव करना तो कर दो आप।
ठीक है, मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। मैं चिल्ला भी नहीं पाऊंगा नहीं पढ़ा नहीं गुरपंत आप लाइन पे हैं? हेलो, यस सर। सर मेरे डाउट्स हैं नहीं। डाउट्स नहीं है आपके? चलो ठीक है। ठीक है, फिर अभी मैं फिर क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको होमवर्क। अच्छा ये थैंक यू चलो सर। ठीक है। वो उसके कोई डाउट्स नहीं है, इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूँ। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। बताइए तीनों, 2P में, 4F में, 3D में। सर 2P में एंगुलर नोड तो 1 होगा। ठीक है, सर नंबर ऑफ रेडियल रेडियल नोड कितने? रेडियल नोड 0 होंगे। ठीक है, और सर टोटल होंगे 1। ठीक है। 4F में? सर एंगुलर 3 होंगे। ठीक है, रेडियल 0 होंगे। रेडियल 0 तो नहीं होगा? 0 होगा? यस ठीक है, सर 0 होगा, N 0 होगा। माइनस ठीक है, L ठीक है, 0 माइनस। होगा, 0 होगा। ठीक है, सर टोटल टो 3 हो गए टोटल। टोटल 3 होगा। 3D में बताइए। सर एंगुलर तो 2 है। ठीक है, सर रेडियल रेडियल 0। ठीक है, टोटल 2। टोटल 2 हो गए। यस सर। ठीक है, चलो मैं अभी फिर इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ। थैंक यू सर। ओके बाय।